Good morning, students. Today's topic is ecosystem. So, before studying about ecosystem, firstly we will go through the ecology. Okay. So, according to Ernst Haeckel, ecology is defined as the body of knowledge concerning the economy of nature, the investigation of the total relations of animal to its inorganic and organic environment. तो इकोलॉजी जो है इट कंसर्न द एनवायरनमेंट एज अ होल, इसमें जितने भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट है किसी एनिमल से रिलेटेड उनके रिलेशंस के बारे में हम जानते हैं. ओके, इट इज अ साइंस ऑफ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक क्लाइमेंट. According to British ecologist Charles Elton, ecology is defined as the scientific natural history concerned with the sociology and economics of animals. According to Taylor, ecology is defined as the science of the relations of all organisms to all their environment. तो ये जो definition है जो कि टेलर ने दिया है, it is more precise, okay, as it is the science or a systematic knowledge of the relations of all the organisms, whether they are the animals or the plants, with all kind of their environments. So let us discuss about the biotic or biological factors of ecosystem. Biological or biotic factors of ecosystem include all the living organisms, which are the plants, animals, bacteria and viruses. तो बायोलॉजिकल फैक्टर में सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरियाज, वायरस, ये सभी आते हैं. ईच काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन एन इकोसिस्टम is given the name a species, name of a species. Okay, हर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्पीसीज का नेम दिया गया है. ओके, तो स्पीसीज बेसिकली उन सभी इंडिविजुअल्स को इंक्लूड करता है जो जेनेटिकली एक जैसे होते हैं, दोज हु आर जेनेटिकली अलाइक, and they are capable of freely interbreeding and producing fertile offspring. और जो आपस में जो है आगे रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, इंटरब्रीडिंग कर सकते हैं. तो उस तरीके के इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनिजम्स को हम स्पीसीज बोलते हैं. ओके, जो जेनेटिकली एक जैसे होते हैं and they are those who are freely capable of interbreeding and producing fertile offsprings of them. In an ecosystem, there exist various relationships between the species. तो species जो हैं उनके बीच में कई relationships हो सकते हैं. Number one, effects. Two species may have any of the following kind of effect. तो the effect of two species, तो first is कि एक जो species है वो दूसरी को negatively affect कर सकती है, competition दे सकती है. दूसरा हो सकता है effect कि कोई भी कनेक्शन नहीं हो आपस में, और मीन्स लाइक वन स्पीसीज डज नॉट अफेक्ट द अनदर एंड इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस ऑन द वेलबींग ऑफ अनदर. तो ये न्यूट्रलिज्म वाला इफेक्ट है. थर्ड इफेक्ट आता है जबकि दो स्पीसीज एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं. ओके, जैसे कि इसको बोलते हैं प्रोटो कोऑपरेशन एंड म्यूचुअलिज्म. सेकेंड इज अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप. The species may aggregate or separate or show a random relationship to one another. तो जो species है वो in total भी count की जा सकती है, अलग अलग से भी हो सकती है, और they may show some random relationship with each other. Division of ecosystem. So ecosystem is divided into following three types. First is the producer, second is consumers, and third is reducers. So producers basically इसमें plants आते हैं और herbs आते हैं. Those who produce those who produce food with the help of sunlight, okay, and with the help of the photosynthesis process, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जो सनलाइट है उसकी हेल्प से जो इकोसिस्टम में, इकोलॉजी में, पूरे इकोसिस्टम में सबसे पहले फूड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें मेनली सारे प्लांट्स और बैक्टीरियाज ही आते हैं.
फिर दूसरे होते हैं कंज्यूमर, जो इन प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। इन कंज्यूमर्स में भी 3 प्रकार के एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट आर द हर्बीवोरस, जो प्लांट्स को खाते हैं। दूसरे होते हैं कार्निवोरस, जो दूसरे जीवों को खाते हैं, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। ओके, एंड थर्ड आर द ओमनीवोरस, दोज हु ईट बोथ द प्लांट्स एज वेल एज द एनिमल्स। तो ये ओमनीवोरस होते हैं, जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। They eat the organic matter produced by other organisms. And third type of organism which are present in ecosystem are the reducers. Reducers are heterotrophic organisms like animals. So they are fungi and bacterial. Then those who decompose the dead organic matters. तो reducers decomposers होते हैं, जो dead organic matters को, जो dead plants और animals हैं, human beings हैं, उनको खाते हैं। तो इसमें basically fungi और bacteria आते हैं। देन द फूड चेन ऑफ द फूड वेब, जो पूरी खाद्य जाल है उसमें खाद्य श्रृंखला होती है, फूड चेन होती है। ओके, तो ये फूड चेन कई प्रकार से काम करती है इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में। स्पीसीज आर रिलेटेड बाय देयर फीडिंग बिहेवियर इन फूड चेन और फूड वेब। ओके, देयर आर 2 बेसिक टाइप ऑफ फूड चेन्स. फर्स्ट इज द कंज्यूमर फूड चेन, which include the sequence of energy flow from producer herbivorous carnivorous to the reducers. ओके, सबसे पहले इसमें क्या है, प्लांट्स हैं, उनको जो शाकाहारी जानवर हैं, जो कि प्लांट्स और फ्रूट्स वेजिटेबल्स को खाने वाले हैं, उन्होंने खाया। उसके बाद कार्निवोरस, जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं, जो हर्बीवोरस को खाते हैं, उन्होंने खाया। उसके बाद जो है रिड्यूसर्स में आ गए। तो एक फूड चेन तो ये हुआ। दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन बाईपास द कंज्यूमर्स गोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर देन द रिड्यूसर। दूसरे डेट्रिटस फूड चेन होती है जिसमें कि जो थोड़ी सी जो वेस्ट फूड चेन है एक तरह से, और इसमें सबसे पहले कंज्यूमर ही आ गए। जैसे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, देन कंज्यूमर है, उसके बाद क्या रिड्यूसर्स हैं। तो यहाँ पर क्या है कि डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स हैं, वेदर दे आर हर्बीवोरस और कार्निवोरस, दे आर गोइंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द रिड्यूसर्स। ओके, general characteristics of an ecosystem. According to Smith, following are the general characteristics of ecosystem. The ecosystem is a major structural and functional unit of ecology. The structure of an ecosystem is related to its species diversity. As such, the more complex ecosystem has high species diversity. Okay, तो जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये स्पीसीज डाइवर्सिटी से रिलेटेड है। जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होगी स्पीसीज की, जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी, उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम होगा। The relative amount of energy required to maintain an ecosystem depends on its structure. तो जो भी रिलेटिव अमाउंट ऑफ एनर्जी है इस इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वो उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रही है। उसमें जितने ज्यादा स्पीसीज होंगे वो उतना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। द मोर कॉम्प्लेक्स द स्ट्रक्चर, लेसर द एनर्जी इट रिक्वायर्स टू मेंटेन इटसेल्फ। जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना ही कॉम्प्लेक्स होगा स्ट्रक्चर, और जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम इको स्ट्रक्चर होगा उतनी ही कम एनर्जी उसको मेंटेन करने के लिए चाहिए, क्योंकि जो एनर्जी है इट पासेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। The function of the ecosystem is related to energy flow in material cycling through and within the system. Okay. Ecosystem mature by passing from less complex to more complex states. Early stages of such succession have an excess of potential energy. लेटर और द मैच्योर, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा लेटर स्टेज में, उसमें लेस एनर्जी की जरूरत होगी। और जो छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे जहाँ पर कि नंबर ऑफ स्पीसीज कम होंगे और जो कि लेस कॉम्प्लेक्स होंगे, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। बोथ द एनवायरमेंट एंड द एनर्जी फिक्सेशन इन एनी गिवन इकोसिस्टम आर लिमिटेड। ओके, तो किसी भी एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है इकोसिस्टम में वो लिमिटेड है। दे कैन नॉट बी एक्सीडेड इन एनी वे विदाउट कॉजिंग सीरियस अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो वो एक्सीड नहीं कर सकते जब तक कि कोई ऐसा बहुत बड़ा अनडिजायरेबल
इफेक्ट क्रिएट ना करे। ऑल्टरेशन इन दी एनवायरमेंट्स represent selective pressures upon the population to which it must adjust. Organisms which fail to adjust to the changed environment must vanish. So that's it about today's lecture, students. Thank you.